Hi guys, in this video I'm going to discuss about ECG electrocardiogram. So yeah, let's get started. In this video I'm going to discuss about the definitions, uses of ECG electrocardiographic जो ग्रेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ECG लेड्स क्या क्या होते हैं. इट इज़ ऑफ टू टाइप, बाइपोलर यूनिपोलर, दोनों तरीके की ECG लेड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. देन बेस ऑफ नॉर्मल ECG, that is P, QRS, C, and U wave. U wave is generally not studied at this level, so we will just study about the P, QRS, and T wave. Okay, so next, what is the definition of electrocardiography? That is, ECG is a technique by which electrical activities of the heart are studied. That how the heart is working, its function of all the ventricles, atria, and all the valves, whether it is functioning properly or not. To know that, this electrocardiography is used. So this is important, and this technique was discovered by Dutch physiologist Antoine Willem, who is considered the father of electrocardiograms. This point is important over here, that Antoine Willem is considered as the father of electrocardiogram. And next is electrocardiogram क्या है? An electrocardiogram is a record of graphical registration of the electrical activities. What we see in the form of graph जो हमें निकलता है बाद में उसमें से in the form of paper sheet पे जो रहता है, that is known as the electrocardiogram, is a graphical record which is considered to be the means this, that it is the technique which is the हार्ट के जो भी फंक्शंस होते हैं वो स्टडीड किए जाते हैं. तो वो यहाँ से पता चलता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, हमें समझ में आएगा. व्हाट वी आर गोइंग टू फाइनली सी इज दिस. The next is, it is the summed electrical activities of all the cardiac muscles, fiber recorded from the surface of the body. In uses of ECG, it is used to measure, to determine the heart rate, heart rhythm, abnormal electrical conductions, poor blood flow to the heart muscles, that is ischemia, in which some kind of coronary artery gets blocked, and heart arrest. In these conditions, to know the heart rate, heart rhythm, conduction, ischemia problem, attack, तो वाल्व्स की फंक्शन, वेंट्रिकल्स की फंक्शन जानने के लिए ECG का यूज़ किया जाता है. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड जो होती है विच इज़ इन द फॉर्म विच वी सी इन द ECG ग्राफ, तो उसमें जो एक ग्रिड होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ग्रिड. द पेपर दैट इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ECG इज कॉल्ड ECG पेपर, एंड ग्रिड रेफर्स टू द मार्किंग और द लाइंस ऑन द ECG पेपर. इसके जो ड्यूरेशंस होते हैं shown on the x axis, duration on the x-axis and amplitude on the y-axis. So 1 millimeter of the x-axis will be the 0.04 second, and 5 millimeter on x-axis will be 0.2 second. Similarly, on the y-axis, 1 millimeter will 0.1 millivolt, and 5 millimeter will be 0.5 millivolt. Speed of the paper will be 25 millimeter per second and 50 millimeter per second. It depends on which type of study you are going to do. If you are doing heart attack or heart rate, then it will differ the speed of the ECG paper. ECG is recorded by placing series of electrodes on the surface of the body. Certain kinds of electrodes are placed. I'm showing you, I have to, yeah. So it is placed over chest like this. Yeah, V1, V2. So this way it is placed on the chest. So these are the poles, electrodes. So yeah, this is fixed on the limbs, usually right arm, and left leg are chosen. Right arm, left and left. सी राइट का सिर्फ आर्म यूज़ होना है, बाकी जो भी है वो हमारे लेफ्ट आर्म है और लेफ्ट लेग है. एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इमेजिनरी इक्वेटोरियल ट्राइंगल जिसको हम लोग एंटोवन ट्राइंगल कहते हैं, सिंस ECG इज डेवलप्ड बाय द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एंटोवन विलेम. Okay, so let one you see a right arm is there. See, right arm is there, left arm is there, and left leg is there. So this forming the Entowin triangle. So coming to the next, there are two type of lead, unipolar and bipolar. Bipolar and unipolar. First of all, we will read about the bipolar limb leads, in which
in which the limbs obtain these limbs, and both the electrodes are active in this case. One electrode is positive and other is negative. In limb lead 1, in limb lead 1 क्या होता है, आप देखो लेड 1 में राइट आर्म में नेगेटिव है और लेफ्ट आर्म में पॉजिटिव है. लेड 2 में जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट लेग है एंड जो नेगेटिव है वो राइट आर्म है. So this way you can understand, like, see, if positive is there, positive is going like this, and then आप समझो कि positive will get into left leg. ठीक है, लेफ्ट लेग से दो पॉजिटिव है, आप ऐसे समझो लेफ्ट लेग से दो पॉजिटिव है, एक लेड 2 का और लेड 3 का. द ट्रिक फॉर यू इज लेड 2 और लेड 3 का जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट लेग में जा रहा है. लेफ्ट लेग में दो पॉजिटिव हैं और इसी तरीके से दो नेगेटिव भी कहीं पर होंगे तो वो राइट आर्म में है. बाकी लेफ्ट आर्म में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ठीक है, इस तरीके से यूनिपोलर लेड्स में है वन इलेक्ट्रोड इज एक्टिव एंड द अदर वन इज इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड. ठीक है, इसमें दो तरीके के आते हैं, यूनिपोलर लिम्ब लिड्स एंड यूनिपोलर चेस्ट लिड्स. जो यूनिपोलर लिम्ब लिड्स होते हैं वो ऑगमेंटेड लिम्ब लिड्स होते हैं या इनको वोल्टेज लिड्स भी कहते हैं. And this is AVR, AVL and AVF. In this way the active electrode is from the right arm to the indifferent electrode, and जो AVL में होता है लेफ्ट आर्म से, और जो इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड है वो बाकी दो बचे में AVF में लेफ्ट लेग होता है. बाकी जो बचे वो तो अपर टू लिम्स में आ जाएंगे. ठीक है, उसके बाद आप देखो ये V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये क्या है. तो ये मैं बताती हूँ कि ये यूनिपोलर चेस्ट लेग्स है, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. सो आप देखो जो V1 है उसकी पोजीशन कहाँ पर है ये. ठीक है, तो V1 की जो पोजीशन है उसमें फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट मार्जिन, आप समझो राइट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन पर एक ही है V1. उसके बाद जितने भी हैं वो लेफ्ट में आ जाएंगे. हमारे लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन पे V2 है, लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन पे ये है, मान लो स्टर्नल हमारा, तो इसके लेफ्ट राइट साइड में V1 है, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में स्टर्नल मार्जिन पे सेकंड है. देन थर्ड की पोजीशन आएगी बिटवीन V2 एंड V4, क्लियरली बिटवीन V2 एंड V4. तो V4 की क्या पोजीशन, तो V4 की पोजीशन है हमारा मिड क्लाविकुलर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. उसके बाद आप समझो कि जितने भी हैं वो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है. डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि आई एम सॉरी, डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है कि ये मिड क्लाविकुलर है, क्योंकि क्लाविकल आप देखिए क्लाविकल के मिड में है, फिर एक्सल के मिड में है, एंड सी एंटीरियर एक्सिलरी एंड ये मिड एक्सिलरी. ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी है इसको समझना. V1 कहाँ पर है, राइट साइड ऑफ द मिड स्टर्नल, V2 कहाँ है लेफ्ट साइड ऑफ द मिड स्टर्नल. उसके बाद V3 कहाँ है V2 V4 के बीच में, और V4 V5 V6 कहाँ पर है, तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में. डिफरेंस क्या है कि ये मिड क्लाविकल है, ये मिड एक्सिलरी है, और ये क्या है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन. सो या नेक्स्ट इज वेव्स ऑफ नॉर्मल ECG. कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उसमें वेव्स होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं. ये चार चीज़ें हमें पढ़नी है. तो कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, P वेव जिसको हम लोग एट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, QRS कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज इनिशियल वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स, T wave is a final ventricular complex and QRS is a ventricular complex. जो पी वेव है वो हमारा एट्रियल कॉम्प्लेक्स से कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी पी वेव क्रिएट हो रहा है वो एट्रिया की वजह से हो रहा है, क्यूआरएस में वेंट्रिकल की वजह से हो रहा है, टी में फाइनल वेंट्रिकल की वजह से बन रहा है वेव, और क्यूआरएस टी जो पूरा है वो पूरा वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्स ही हो जा रहा है हमारा. एक इनिशियल फाइनल मिला के पूरा वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है. सो वेरी इजी. पहला जो पी है वो एट्रिया है, बाकी सब क्या है वेंट्रिकल है. एक इनिशियल है एक फाइनल है, बाकी तीसरा जो क्यूआरएस है वो पूरा पूरा वेंट्रिकल है. तो उसके बाद आप देखिए ये पी वेव है, ये इनिशियल आई मीन सॉरी ये एक सिर्फ आर्ट्रिया है, बाकी सब ये जो दिख रहे हैं आपको ये हो जाते हैं हमारे वेंट्रिकल कॉम्प्लेक्स. ठीक, नेक्स्ट आप इसमें देखो सेगमेंट्स और इंटरवल्स की बात की गई है, तो PR इंटरवल होते हैं. ठीक है, ST फिर उसके बाद PQ सेगमेंट, ST सेगमेंट, QRS कॉम्प्लेक्स. तो
ये तरीके होते हैं। फिर उसके बाद आप समझो कॉजेज़ क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ पी वेव, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होने का क्या कॉज है। तो पी वेव जो है इज बिकॉज ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इन रिस्पॉन्स टू एसए नोड ट्रिगरिंग। जैसे मैंने बताया था कि पी वेव के लिए होता है, क्यूआरएस के बाद जितने भी हैं वो टी तक पूरा किस लिए है, वेंट्रिकल्स की वजह से। तो जो क्योंकि स्टार्टिंग सी आर इंटरवल है वो डिले है, क्योंकि इसमें वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो रहा है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, इसमें भी डीपोलराइजेशन हुआ था, इसमें भी डीपोलराइजेशन हो रहा है। पी वेव इज ड्यू टू वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, उसके बाद एसटी सेगमेंट इज बिकॉज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द रीपोलराइजेशन। ठीक है, जो ये है हमारा इज द डिले ऑफ एवी नोड एंड इट इज द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकल। ओके, सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट। और इसमें इस चैप्टर में और क्या है कि जो भी फीमेल है उसमें कोई डिफॉर्मिटी आती है, उसके एम्पलीट्यूड में बढ़ता है घटता है, तो इससे काफ़ी डिजीजेस की डायग्नोसिस में हेल्प होती है। सो वी विल स्टडी दैट इन अनदर वीडियो। Thank you for watching my video, and if you want any type of questions, you can comment in the comment section. Thank you.